Now, in our unit 1, the important topic, that is our Leibniz theorem. This Leibniz theorem is used to find nth derivative of product of two functions. So nth derivative के standard results जो थे last के lecture में हमने बहुत सारे किए. The successive derivative, then the standard result of nth derivative, and now today's topic, that is our to find nth derivative of product of two functions. कोई दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो उसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है. So to understand this, if our function, let's take y, be a product of two functions ux and vx. Now ux, that means u is a function of x, and vx, that is also same, v is a function of x, and y can be written as ux into vx. Product of two function ux vx. Now to find the nth derivative of y, nth derivative of y, using this rule that is called Leibniz theorem. Leibniz theorem. So एक सिंगल अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है u y इक्वल टू u इंटू v, अगर हमें उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? u इंटू v का अगर डेरिवेटिव आपको करना है, आप सिंपली बोलते कि u डैश v प्लस u v डैश, मतलब एक का डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस फिर दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे पहला फंक्शन एज इट इज. दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फिर उसी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, फोर्थ ऑर्डर, तो ऐसे चल के जाएंगे तो nth नंबर की डेरिवेटिव क्या होगी. तो जो nth नंबर की डेरिवेटिव का जो रिजल्ट मिलेगा, दैट रिजल्ट इज बेस्ड ऑन अवर दिस Leibniz theorem. So this Leibniz theorem is important to find out derivative, that is nth derivative of product of two functions. Now before going to start our theorem and its proof, we just recall some result. आपको थोड़ा रिजल्ट याद करना है. तो पहला रिजल्ट है कॉम्बिनेशन रूल. कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस आता था. तो कॉम्बिनेशन रिजल्ट का एक होता है सिंबॉलिकली, अगर मैं बताऊं तो NCR, उसको NCR बोलो या जो सिंपल डिफरेंट सिंबल है सारे के, जैसे पढ़ते तो वैसे ही थे. NCR, कॉम्बिनेशन रूल फ्रॉम N आउट ऑफ R आउट ऑफ N. सो NCR ऐसे भी लिखते थे आप स्कूल में, या NCR को समटाइम्स ऐसे भी लिखते थे. सो ऑल आर सिंबॉलिकली. So what is its formula of NCR? N factorial upon N factorial upon R factorial into R factorial. Very good. N factorial upon N minus R factorial into R factorial. That is our formula of NCR. Combination rule. સંચયનો નિયમ, એવું કંઈક આપણે ગુજરાતી વાળા જાણતા હશે. સંચયનો નિયમ, ક્રમ અને સંચયનો નિયમ. બરાબર. તો જે આપણે NCR માં n ફેક્ટોરિયલ अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. फिर एक होता था परम्यूटेशन रूल, NPR. तो NCR और NPR, तो NPR की फॉर्मूला क्या थी? NPR की जस्ट रिकॉल करना. यहाँ पर हम फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल. n factorial upon r factorial. n factorial upon n minus r factorial. Very good, Vishal, correct. N factorial upon n minus r factorial. That is your NPR. NPR का फॉर्मूला है, जिसमें से ये जो r फैक्टोरियल है वो हटा दो. n factorial upon n minus
r factorial. So NCR combination rule, तो सिंपल ये जो रिजल्ट जो है वो जस्ट आपको पता भी है, आपको जस्ट रिकॉल ही करने हैं कि NC0 that is equal to 1. सिमिलरली NCN उसकी वैल्यू भी 1 होती है. NC1 तो आप फॉर्मूला से वेरीफाई भी कर सकते हो और उसको आप याद भी रखते थे. NC1 that is equal to N. सिमिलरली NC2 उसकी फॉर्मूला क्या बनती थी? अगर फॉर्मूला के हिसाब से सोचे n factorial upon n minus 2 factorial into 2 factorial that is equal to, अगर उसको सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा n into n minus 1 upon 2 factorial, that is our NC2. So NC0 is 1, NC0 is 1, NC1 is n, NC2 that direct formula n minus 1 upon 2 factorial. अगर वैल्यू निकाल ली है तो सिमिलरली NC3 के लिए अगर लिखना चाहे हम तो फैक्टोरियल फॉर्मूला से भी लिख सकते हो, as well as we can also write into n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial, that is our NC3. So n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो और फैक्टोरियल नोटेशन में भी लिख सकते हो. So now we are using some results which are used to prove in our Leibnitz theorem. So NCR formula is given n factorial upon n minus r factorial upon r factorial. So first result we are using in our Leibnitz theorem, that is if we say that KC0 उसकी वैल्यू भी 1 होगी. सिमिलरली k प्लस 1 C0 लिखेंगे तो भी उसकी वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि NC0 इक्वल टू 1 है. तो KC0 लिखेंगे तो भी 1 होगा, k प्लस 1 C0 होगा तो भी वो वैल्यू 1 ही रहेगी. तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे लाइबनिट्ज थ्योरम में, दैट इज योर KC0 इक्वल टू 1 इक्वल टू k प्लस 1 C0. नेक्स्ट रिजल्ट दैट इज योर KCK, तो उसकी वैल्यू भी 1 है. सिमिलरली k प्लस 1 C k प्लस 1 तो उसकी वैल्यू भी 1 ही है. तो KCK उसकी जगह पर हम k प्लस 1 C k प्लस 1 लिख सकते हैं. k प्लस 1 C k प्लस 1 कॉम्बिनेशन रूल, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 ही रहेगी. KC0 की वैल्यू भी 1, k प्लस 1 C0 उसकी वैल्यू भी 1, KCK उसकी वैल्यू भी 1 है और k प्लस 1 C k प्लस 1 उसकी वैल्यू भी 1 होगी. नेक्स्ट रिजल्ट है KCR माइनस 1 प्लस KCR माइनस 1 प्लस KCR. इसकी फॉर्मूला क्या बनती थी, किसी को याद है? k plus 1 CR. वेरी गुड, k plus 1 CR. That formula k plus 1 CR. और यही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है in to prove our Leibniz theorem, the third step for n equal to k plus 1. So whenever we have KCR minus 1 plus KCR equal to k plus 1 CR, ये जो लास्ट रिजल्ट है अगर उसका प्रूफ देखना है तो हम ओरली उसका प्रूफ देख लेते हैं क्विकली कि हाउ टू प्रूव दिस KCR minus 1 plus KCR is became k plus 1 CR. So our left hand side is KCR minus 1 plus KCR and apply our formula of NCR. तो KCR minus 1 उसकी जगह आप लिख सकते हो k factorial upon k minus r minus 1, that is k minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial. फिर दूसरा जो है वो KCR उसकी जगह भी लिख सकते हैं डिवाइड k minus r factorial into r factorial. Now according to this too, you can take some constant value.
तो अगर न्यूमरेटर में से देखें तो k फैक्टोरियल ऊपर दोनों में कॉमन है तो वो बाहर आ सकता है, और कोई रिजल्ट डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालना है हमें, तो जो छोटा वाला रिजल्ट है वो कॉमन निकाल सकते हो आप। सो ये एक रिजल्ट है r फैक्टोरियल और दूसरा है r-1 फैक्टोरियल, एंड वी ऑलरेडी नो दिस r factorial is equal to r into r minus 1, r into r minus 1 factorial, वो r factorial की जगह बन जाएगा। तो r minus 1 factorial दोनों टर्म के नीचे आएगा तो वो कॉमन ले सकते हैं। फिर ये k minus r factorial है और दूसरा है k minus r plus 1, तो बड़ा वाला कौन सा होगा, k minus r बड़ा होगा या k minus r plus 1? ऑब्वियसली दिस इज बिगर, k minus r plus 1, और उसकी जगह भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, k minus r plus 1 factorial is equal to k minus r plus 1 into k minus r factorial, and then we take common that number k factorial upon k minus r factorial, r minus 1 factorial, वो सभी टर्म में से कॉमन निकल देते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह क्या होगा, k minus r plus 1 into k minus r factorial, k minus r फैक्टोरियल। तो k माइनस आर फैक्टोरियल आउटसाइड हो गया तो k माइनस आर प्लस 1 यहाँ पर बचेगा। सिमिलरली सेकंड टर्म में से r फैक्टोरियल है तो r माइनस 1 फैक्टोरियल आउटसाइड हो गया तो ओनली r फैक्टर बचेगा, ओनली r बचेगा, ओनली r। सो बाय टेकिंग आफ्टर कॉमन नंबर वी गेट 1 over k minus r plus 1 upon r, and by taking cross multiply LCM here, so r goes to up and k minus r plus 1 goes here, r get cancel, k plus 1 बचेगा upon k minus r plus 1 into r, so k factorial into k plus 1 न्यूमरेटर में बचेगा, डिनोमिनेटर में k minus r factorial into r minus 1 factorial into k minus r plus 1 into r, and by multiplying together that is k minus r factorial into k minus r plus 1 into r minus 1 factorial into r, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा हमारा रिलेशन k plus 1 factorial, डिनोमिनेटर का रिलेशन होगा k minus r plus 1 factorial, that is also we can write k plus 1 minus r factorial into r factorial, and that is nothing but our k plus 1 cr। तो ये जो रिजल्ट जो हमने प्रूफ किया है LHS इक्वल टू RHS, ये हमें जस्ट यूज ही करना है, इसका प्रूफ हमें यहाँ पर प्रूफ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रूफ कैसे होता है और ये रिजल्ट हम कैसे यूज करेंगे वो वाला। सो नाउ वी आर गोइंग थ्रू, ये समझ में आ गया होगा सबको कि रिजल्ट कैसे प्रूफ किया, आपने स्कूल में भी किया होगा। So now we are going to our important theorem, that is Leibnitz theorem। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एवरी एग्जाम अगर आप देखो यूनिवर्सिटी की इवन कॉलेज की एग्जाम के, ये पेपर में ये थियरम होती ही है, स्टेट एंड प्रूव लाइबनिट्ज थियरम। उसका स्टेटमेंट लिखना है फिर उसको हमें प्रूफ करना है, स्टेट एंड प्रूव लाइबनिट्ज थियरम। तो उसका स्टेटमेंट अगर हम सोचे, दैट स्टेटमेंट, सो इफ u and v be two functions of x, then nth derivative of product of uv, nth derivative of product of u and v function is given as uv nth derivative is equal to
अब इसका रिजल्ट कैसे बनेगा, तो NC0 u फंक्शन का nth डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस NC1 u फंक्शन का n-1th डेरिवेटिव v फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस NC2 u फंक्शन का n-2 डेरिवेटिव और v फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव plus dot 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 if to rth number that is NCR u n minus r vr plus dot 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 of last number that is NCN u as it is vn। मतलब कि जो u और v फंक्शन जो है उसमें से एक v as it is किया और u फंक्शन का हमने nth डेरिवेटिव ले लिया। u फंक्शन का nth डेरिवेटिव है तो nth डेरिवेटिव में से डिक्रीज करते जाएंगे और v फंक्शन के डेरिवेटिव इंक्रीज करते जाएंगे। तो v एज इट इज, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव v1, फिर सेकंड डेरिवेटिव v2, फिर v3 vr अप टू लास्ट नंबर दैट इज योर nth डेरिवेटिव vn। एंड u फंक्शन का हमने पहले से nth डेरिवेटिव लिया हुआ है तो उसमें हम एक एक डिक्रीज करते जाएंगे उसका डेरिवेटिव। un है तो उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव नेक्स्ट टर्म में होगा un-1 un-2n सो ऑन। एंड जो कोएफिशिएंट है सभी टर्म का दैट इज योर कॉम्बिनेशन रूल NC0 NC1 NC2 NCR NCn। तो टोटल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द nth डेरिवेटिव ऑफ uv फंक्शन, टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं अगर आप काउंट करो तो पता चल जाएगा। n+1 n+1 very good, so total are n+1 term in the derivative of n, क्योंकि NC0 पहला टर्म 0 वाला है, फिर 1 2 3 अप टू लास्ट नंबर है। तो टोटल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो टोटल n नंबर की टर्म्स होती है। नाउ इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ NCN un-1 then NCN-1 u1 vn-1, रिवर्स ऑर्डर में भी लिखो या आगे वाले ऑर्डर में भी लिखो, दे आर ऑलवेज इक्वल बिकॉज NC0 इज इक्वल टू NCN, फिर दूसरा नंबर होता है NC1 इज इक्वल टू NCN-1, NC2 is equal to NCn-2 and so on. That is a property of our combination rule. तो ऑर्डर कोई भी किसी भी फंक्शन को u बता दो, किसी भी फंक्शन को हम v बता सकते हैं। एंड नाउ टू प्रूव दिस रिजल्ट, अभी इसको हम प्रूव करना है हमें, तो वी आर यूजिंग अवर मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल। तो वो जो 3 स्टेप्स है हमारे मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल के, वही 3 स्टेप हमें यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। तो ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવાનું છે। So let's write our statement Pn, that is our nth derivative of uv function that is given in our statement। जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है वही स्टेटमेंट में नीचे लिख दिया है uv का nth डेरिवेटिव। And now step 1, that is for n equal to 1। So for n equal to 1, our aim is to find the first order derivative, that is uv1। अगर हम uv1 कहते हैं मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ uv फंक्शन। So u का डेरिवेटिव तो v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो हम इसको लिख सकते हैं u1v प्लस uv1 u1v प्लस uv1। और इन दोनों के कोएफिशिएंट अगर हम देखें तो दोनों के कोएफिशिएंट 1 1 ही आएंगे। तो इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं 1c0 u1v प्लस 1c1 uv1। So if we put n equal to 1 in this statement, अगर आप n equal to 1 इस स्टेटमेंट में रखोगे तो uv1 that is 1c0 u1v plus 1c1 u0 मतलब कि uv1। तो वो नंबर आ गया। फिर नेगेटिव डेरिवेटिव तो होती नहीं, मतलब कि पहले 2 टर्म्स ही मिलेंगे फॉर n equal to 1। So this
uv1 derivative is satisfy our statement Pn. So we can say that P1 is true. Product of two functions. So P1 is true now. So step 2 में जाएंगे हम. That is for n equal to k, we assume that our pk is true. Pk is true, that means kth order derivative of u function. That is our kc0 ukv plus kc1 u k minus 1 v1 plus kc2 u k minus 2 v2 up to kcr u k minus r vr up to kck u vk for k belongs to natural number. And then our step number 3 for n equal to k plus 1. तो अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोटबुक में ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है UVK वाला रिजल्ट, अगर आपको UVK प्लस 1 वाला रिजल्ट लाना है हमें UVK प्लस 1, UVK plus 1. So what is your right hand side? So right hand side होगा हमारा यहाँ पर k plus 1 C0 U k plus 1 V. अगर आपके पास नोटबुक है तो आप उसमें लिख सकते हो कि क्या बनेगा हमारा अब P k plus 1 स्टेटमेंट. तो UV k plus 1 is equal to k plus 1 C0 U k plus 1 V. फिर नेक्स्ट नंबर होगा यहाँ पर, दैट इज k प्लस 1 C1 U k प्लस 1 माइनस 1 V1 यानी कि UK V1. फिर k प्लस 1 C2 U k प्लस 1 माइनस 2 V2. एंड लास्ट नंबर दैट इज k प्लस 1 CK प्लस 1 U VK प्लस 1. और अगर ये स्टेप की बात करेंगे तो k प्लस 1 CR U k प्लस 1 माइनस R VR. अगर वो रिजल्ट हमें मिल गया तो हमारा P ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट मिल जाएगा. एंड हेंस वी एक्सेप्ट दिस रिजल्ट बाय यूजिंग आवर मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल. सो UV k प्लस 1 मतलब कि हमें UV फंक्शन का k प्लस 1th डेरिवेटिव करना है. तो UV फंक्शन का k प्लस 1th डेरिवेटिव मतलब कि उसका kth डेरिवेटिव है, उस kth डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव कर दो. UVK जो है उसका एक और डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डेरिवेटिव बन जाएगा k प्लस 1. So d by dx of UVK, ये जो UVK है वो सेकंड स्टेप में से कॉपी ले लो. d by dx of UVK, तो UVK जो है सेकंड स्टेप में हमारा रिजल्ट वो पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा. KC0 UKV plus KC1 UK minus 1 V1 and so on up to KCR UK minus R VR and KCK U into VK. अब आगे लिखा हुआ है d by dx. d by dx मतलब कि सभी टर्म्स का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो अगर हम पहले टर्म के बारे में अब सोचते हैं पहले हम, तो KC0 है मल्टीप्लाई में KC0. तो KC0 तो जो होता है वो तो कांस्टेंट है, तो साथ में नंबर है UKV. तो UKV ये जो नंबर है UKV नंबर, उसका हमें डेरिवेटिव करना है d by dx. तो UKV का डेरिवेटिव करना है एक बार, दैट इज योर प्रोडक्ट रूल. एक नंबर एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव. तो UKV है तो V अगर हम एज इट इज रखेंगे तो UK का एक और डेरिवेटिव, UK का एक और डेरिवेटिव क्या होगा, अगर आपके पास UK है
मतलब kth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन u and if you need one uk more plus 1 very good uk plus 1 मतलब कि uk का डेरिवेटिव किया हमने तो uk plus 1 बन गया। if you have uk minus 1 अगर आप uk minus 1 है और उसका डेरिवेटिव करते हो तो क्या मिलेगा uk वेरी गुड uk k minus 1 ऑलरेडी था उसमें एक और डेरिवेटिव किया तो अब हमें बन गया हमारा डेरिवेटिव uk नंबर में डेरिवेटिव बन गया। फिर ये भी है uk minus 2 अगर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो uk minus 1 होगा। सिमिलरली uk minus r है अगर उसका डेरिवेटिव करते हैं uk minus r तो uk minus r का डेरिवेटिव क्या होगा uk minus r minus 1 तो प्लस 1 एक और डेरिवेटिव कर रहे हैं तो प्लस 1 uk minus r plus 1 तो डेरिवेटिव उस टर्म में आगे बढ़ती जाएगी। सो हियर आई राइट ऑल दिस स्टेप्स दैट इज योर डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म। तो सभी टर्म्स के दो दो टर्म्स बन जाएंगे। पहला वाला जो टर्म है kc0 वाला जो टर्म है उस kc0 टर्म का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसके दो टर्म्स मिल जाएंगे हमें। तो kc0 uk का डेरिवेटिव तो uk plus 1 v as it is and now uk as it is v का डेरिवेटिव तो v का डेरिवेटिव v1 so that is our derivative of kc0 ukv। फिर नेक्स्ट kck uk minus 1 v1 kck uk minus 1 v1 उसका आपको डेरिवेटिव करना है। So to take its derivative again we have a two step for kc1 तो kc1 into uk minus 1 v1 है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो v1 as it is uk minus 1 का डेरिवेटिव uk तो पहले टर्म में होगा uk v1 और दूसरे टर्म में होगा uk minus 1 v2 यहाँ पर बनेगा आपका uk minus 1 v2 तो v का डेरिवेटिव हो गया। सिमिलरली kc2 के भी दो टर्म्स मिलेंगे हमें uk minus 1 v2 फिर दूसरा होगा uk minus 2 v3 वो kc2 का प्रोडक्ट होगा अप टू kcr। अब अगर हम kcr की बात करेंगे तो ये जो kcr वाला रिजल्ट है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो kcr एज इट इज u k minus r plus 1 vr into kcr u k minus r v r plus 1। एक बार u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ और दूसरी बार v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। प्रोडक्ट रूल ही करते हैं। नेक्स्ट इज kck u vk सो kck एज इट इज u का डेरिवेटिव u1 vk प्लस kck u v k plus 1। नाउ टोटल हमारे पास n plus 1 स्टेप थे। इस रिजल्ट के अंदर n plus 1 टर्म थे सभी टर्म के दो दो टर्म्स मिल गए मतलब फिर 2 टाइम्स n plus 1। अब जो नीचे वाले टर्म्स मिलेंगे वो 2 टाइम्स n plus 1 हो गए। बट इफ यू ऑब्जर्व दैट फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को छोड़ के बीच के सभी रिजल्ट जो है उसमें कॉमन आ रहा है दो दो नंबर में कॉमन आ रहा है। इफ यू ऑब्जर्व दैट kc0 एंड kc1 ये जो दो वाला मिडिल टर्म है सेकंड एंड थर्ड टर्म तो उसमें ukv1 दोनों में कॉमन है तो वो हम बाहर ले सकते हैं ukv1 तो अंदर बचेगा kc0 प्लस kc1। एक बार फिर से ये जो हमने डेरिवेटिव किया वो समझ में आ गया सबको। ये d by dx करके ये नीचे वाले स्टेप में गए हम
तो ये आपको समझ में आ गया? यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं, जो इक्वल टर्म है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो पहला टर्म जो है KC0 UK + 1V, पहला टर्म जो है वो तो कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा, तो वो हम एज इट इज लिखेंगे। फिर दूसरा और तीसरा टर्म्स जो है UKV1 वाला, तो दोनों में UKV1 है, तो वो कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा KC0 KC + KC1 UKV1। फिर नेक्स्ट वाले टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, मतलब कि UK-1V2 वाला जो टर्म है, UK-1V2, अगर हम उसमें से कॉमन लेते हैं UK-1V2, तो कोएफिशिएंट होगा KC1 + KC2, वो नंबर कॉमन आ गया। सिमिलरली अगर हम ये वाले टर्म ऑब्जर्व करेंगे, KCR UK-R + 1VR, अगर ऐसा ही एक और टर्म होगा तो वो टर्म आगे वाले स्टेप में होगा, दैट इज योर KCR-1 वाले टर्म में होगा। अगर वहां से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बनेगा KCR-1 + KCR UK-R + 1VR। फिर ये वाला टर्म फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये वाला स्टेप भी आगे के साथ कॉमन होगा, तो लास्ट वाला स्टेप अकेला बच जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है KC0 वाला स्टेप UK + 1V, और लास्ट स्टेप जो है KCK U × V K + 1, वो रिपीट नहीं होते थे इसलिए उसको लिख दिया। और जो जितने भी बीच वाले टर्म्स जो रिपीट होते हैं, तो सारे रिपीट टर्म में से कोएफिशिएंट का एडिशन हमें मिलेगा, KC0 + KC1, एंड नेक्स्ट इज KC1 + KC2। तो यही जो लास्ट वाला स्टेप है, तो नेक्स्ट स्लाइड में फिर से कॉपी पेस्ट करके लिख दिया है। दैट इज आवर UV K + 1 डेरिवेटिव, जो हमने कॉमन लेके अभी निकाला वही रिजल्ट है। KC0 UK + 1V + KC0 KC + KC1 KC1 + KC2, ऐसे all terms। And now we are using our result of combination rule। ये जो बीच का ये सारे रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, KCR-1 + KCR, उसकी जगह बन जाएगा K + 1CR। सिमिलरली ये जो टर्म है KC0 + KC1 R = 1 लेके आप चेक कर सकते हो। तो KC0 + KC1, so we can write it is equal to K + 1C1। तो ये जो पहला नंबर है उसकी जगह बन जाएगा आपका K + 1C1 using this result। फिर नेक्स्ट KC1 + KC2, उन दोनों का एडिशन इस प्रॉब्लम के हिसाब से करो बाय टेकिंग R = 2। अगर R = 2 लेंगे तो 2 -1, हाँ, K + 1C2, K + 1C2, करेक्ट, K + 1C2, ये इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। इसका तो लिखा हुआ ये K + 1CR एंड अप टू लास्ट नंबर। बीच वाले नंबर का सिंप्लीफिकेशन हो गया। फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट कोएफिशिएंट KC0 है, तो KC0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसकी जगह पर हम K + 1C0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू भी 1 है। तो फर्स्ट टर्म जो है KC0, इस KC0 की जगह पर हम लिखेंगे K + 1C0, बिकॉज दोनों की वैल्यू 1 1 होती है। सिमिलरली फॉर लास्ट नंबर KCK, तो उस KCK की जगह पर हम लिखेंगे K + 1C K + 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 1 होती है। KCK इज ऑल्सो 1, K + 1C K + 1, उसकी वैल्यू भी 1 है। तो लास्ट नंबर का जो कोएफिशिएंट है KCK, उसकी जगह पर हम लिखेंगे K + 1C K + 1।
So now we get this result. That is our first sum. अगर हम देखेंगे तो k plus 1 c0 uk plus 1v plus ये जो एडिशन है उसकी जगह आ गया हमारा k plus 1 c1 uk v1. फिर ये जो एडिशन है उसकी जगह आ जाएगा k plus 1 c2 uk minus 1 v2. आर्थ वाला जो टर्म है vr वाला टर्म उसकी जगह पर भी आएगा k plus 1 cr 2k plus 1 minus r. और आप ऐसे भी लिख सकते हो that is your k minus r plus 1. ये जो है k minus r plus 1 उसकी जगह पर k plus 1 minus r भी लिख सकते हैं into vr. and last number that is our kck वाला टर्म. उस kck वाले टर्म की जगह पर हम लिख सकते हैं k plus 1 c k plus 1. And if you observe that is our similar statement of p of k plus 1. So hence our p of k plus 1 is true. And once we say that our p of k plus 1 is true, so by mathematical induction principle, our Pn statement is true for n equal to natural number, or n belongs to natural number. So that is our proof of Leibnitz theorem by using mathematical induction principle. वो जो k plus 1 वाला स्टेटमेंट है nc0 unv nc1 unv1 with nc2 un minus 2v2 nc2 un minus 3v3 and so on. लास्ट में ncn uvn उस n की जगह k plus 1 रख के भी हम वेरीफाई कर सकते हैं. So hence our theorem is proved. So we can say that the nth derivative of uv function is nc0 unv plus nc1 u n minus 1 v1 plus nc2 u n minus 2 v2 up to ncr un minus r vr, and last number that is ncn uvn. That is our nth derivative of product of u and v. Now notation, that is other form of Leibniz theorem. Leibniz theorem को अलग अलग फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? तो फर्स्ट जो ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है उसी नंबर में से लिख सकते हैं nc0 unv plus nc1 un minus 1 v1 and so on. हम उसको सिग्मा नोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं. अगर लाइबनिट्ज थ्योरम को सिग्मा नोटेशन के अंदर लिखना है तो वी कैन राइट सिग्मा r equal to 0 to n ncr un minus r vr. सिग्मा r is equal to 0 to n, मतलब कि r equal to 0 से शुरू करना है और n तक हमें जाना है, 0 से लेकर n तक. तो पहला टर्म होगा nc0, फिर दूसरा टर्म होगा nc1 nc2 ncr अप टू ncn. तो टोटल सारे टर्म्स जो है तो दैट इज अवर अदर फॉर्म ऑफ लाइबनिट्ज थ्योरम. तो ओरिजिनल लाइबनिट्ज थ्योरम है उसी का हम उसको सिग्मा नोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, सिग्मा नोटेशन के अंदर. फिर दूसरा हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो nc0 सभी की एक बार वैल्यू पुट करोगे. nc0 की वैल्यू 1, so nc1 की वैल्यू n, nc2 की वैल्यू n minus 1 upon 2 factorial and so on. That is our sigma notation ncr un minus r vr. And now third result is replacing the value of nc0 nc1 nc2 and so on. So nc0 की जगह पर 1, that is 1 into unv. So 1 into unv. Then next is nc1. nc1 की जगह हम n लिख सकते हैं. Then next है nc2. उस nc2 की जगह पर लिखेंगे n
n minus 1 upon 2 factorial un minus 2 v2 and so on, फिर n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial। उस टर्म में आप लेकर जाओ तो लास्ट नंबर होगा ओनली u इंटू n, बिकॉज NCN लास्ट नंबर जो है वो NCN है और उस NCN इज इक्वल टू 1। So this is our different forms of Leibnitz theorem. So again I repeat, this theorem is very important. ये कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर पेपर लिखोगे तो इस पेपर में ये थियरम होता ही है, स्टेट एंड प्रूव लाइब्निट्ज थियरम। मतलब उसका पहले हमें स्टेटमेंट लिखना है और फिर उसको पूरा प्रूफ करना है। अदर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, बट ओनली प्रूफ करना है यूजिंग अवर मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल। तो ये प्रूफ समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। समझ में आ गया ना सबको प्रूफ? इसका पीडीएफ और रिकॉर्डिंग लेक्चर भी हम रख देंगे 3 एप्लीकेशंस के अंदर, तो आप उसको फिर से रिवीजन करना आज, और आज ही यही थियरम जो है उसको लिख के तैयार करना है। इसी थियरम को अगर आप 2 या 3 बार लिखोगे खुद अपने हाथों से, तो आपको ये थियरम याद रह जाएगी अभी के अभी। आपको बस ये जो 3 स्टेप्स है मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल के, उस 3 स्टेप को फॉलो करना है, और वो जो nth डेरिवेटिव वाला रिजल्ट होता है उस रिजल्ट के हिसाब से आपको तो पूरा स्टेटमेंट जो है प्रूफ हो जाएगा। तो दिस इज Leibniz theorem, एंड उसका जो थर्ड फॉर्म है UVN, UNV प्लस N UN माइनस 1 V1 एटसेट्रा, लास्ट वाला रिजल्ट, तो वो रिजल्ट हम एग्जांपल में यूज करेंगे। So now let's some application of our Leibniz theorem. Leibniz theorem में यूज करेंगे આપણે एग्जांपल्स सॉल्व करवाना है। एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं कि e पावर y is equal to x into e raised to 3x। तो x into e raised to 3x, then find out y n, nth डेरिवेटिव क्या होगी उसकी। क्या फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव तो फाइंड करोगे, बट डायरेक्टली हमें चाहिए nth डेरिवेटिव। सो nth डेरिवेटिव ऑफ x into e raised to 3x। So x is one function and e raised to 3x is also another functions। तो जब ये दो फंक्शंस होंगे x और एक्सपोनेंशियल, तो 2 फंक्शंस बन गए u and v टाइप्स के। तो इसके लिए हम लाइब्निट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे। Here y is x e raised to 3x, and our formula of Leibniz theorem which are used to solve in our example, that is nth derivative of uv function is u and v plus n into un minus 1 v1 plus n minus 1 by 2 factorial un minus 2 v2 and so on। आप NC0, NC1, NC2, NC3 वो वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वही फॉर्मूला है ये। NC0 की जगह 1 लिख दिया, NC1 की जगह n, NC2 उसकी जगह n minus 1 upon 2 factorial। अब हमें u और v डिसाइड करना है। तो u और v हम कैसा सपोज करें अगर अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला में अगर हम देखें तो u जो है उसका पहले nth डेरिवेटिव फाइंड करना है और फिर डिक्रीज करना है, और जो v फंक्शन है उसको v एज इट इज, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे जाना है। सो चूज अ v फंक्शन सच दैट इट्स डेरिवेटिव आर गोज टू 0, जिसकी डेरिवेटिव समथिंग 0 की ओर जाती हो, ऐसा हम v फंक्शन सपोज करेंगे, क्योंकि v, v1, v2, v3 है। So we take v is equal to x and u is equal to e raised to 3x. That is our uv function. u is equal to e raised to 3x and v is equal to x. ऐसा क्यों हमने सपोज किया? क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है
un, nth डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 3x, e रेज टू 3x का nth डेरिवेटिव होगा 3 रेज टू n e रेज टू 3x, उसका डायरेक्ट nth डेरिवेटिव आ गया। और v इक्वल टू x है, हमें v1 v2 v3 उस फॉर्म में चाहिए। तो अगर आपका v इक्वल टू x है तो उसका पहला डेरिवेटिव v1, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, फिर v2 सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x, तो पहले x का 1 और 1 का फिर 0, मतलब कि v2 हमारा 0 हो गया। अब v2 0 हो गया तो v2 v3 v4 v5 अप टू vn वो सारे के सारे नंबर 0 ही होंगे, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। तो v2 0 v3 0 v4 0 v5 0, जैसे सारे नंबर 0 होंगे। तो जो nth डेरिवेटिव होगा उसमें v और v1 तक ही पहले दो टर्म्स ही मिलेंगे, ताकि के थर्ड टर्म मतलब कि 2 फैक्टोरियल वाले टर्म से सभी नंबर 0 मिल जाएंगे आपको। Now replace all this number into your formula. So we can write y n is equal to x e raised to 3x, its nth derivative using our rule. Rule जो है वो क्या है, u n v। तो ये जो फॉर्मूला लिखी है यहाँ पर, ये फॉर्मूला यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। सो u n v, ये जो फॉर्मूला होगा u n v प्लस n इंटू u n माइनस 1। u आपका फंक्शन है e रेज टू 3x, तो उसका n माइनस 1 डेरिवेटिव, e रेज टू 3x का n माइनस 1 डेरिवेटिव इंटू v1 होगा। तो जो v फंक्शन x है तो उसका डेरिवेटिव v1, तो v1 का वैल्यू, v1 की वैल्यू 1, और फिर नेक्स्ट टर्म जो होगा 2 फैक्टोरियल वाला n माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू u n माइनस 2 इंटू v2, बट v2 हमारा 0 है। अगर v2 0 है तो फिर नेक्स्ट सारे टर्म्स उसके 0 हो जाएंगे। सो हियर वी हैव ओनली 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज e raised to 3x, its nth derivative into x plus n into e raised to 3x, its n minus 1th derivative into 1, बाकी के सारे टर्म्स 0। अब e raised to 3x का nth डेरिवेटिव तो वो फॉर्मूला में ऊपर लिखा ही है, u raised to 3x का nth डेरिवेटिव होगा 3 raised to n e raised to 3x, and e raised to 3x का n minus 1th डेरिवेटिव, e raised to 3x का n minus 1th डेरिवेटिव, e raised to 3x का n minus 1th डेरिवेटिव होगा 3 raised to n minus 1 e raised to 3x। तो फर्स्ट नंबर होगा 3 raised to n e raised to 3x into x plus n into e raised to 3x into 3 raised to n minus 1, and that is our nth derivative of x into e raised to 3x। ये जो डेरिवेटिव है nth डेरिवेटिव ऑफ x e raised to 3x by using our Leibnitz formula, Leibnitz rule। And next हम जाएंगे हम x square cos x। Next result x square into cos x। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक सिंपल पॉलिनोमियल x स्क्वायर है, फॉर्मूला आप लाइबनिट्ज वाले यूज करेंगे। सो व्हाट इज आवर चॉइस ऑफ u एंड v? तो u इक्वल टू क्या चॉइस लेंगे? स्क्वायर cos x u इक्वल टू cos लेंगे और v इक्वल टू x स्क्वायर। व्हाई वी टेक v इक्वल टू x स्क्वायर? क्योंकि अगर v का डेरिवेटिव फाइंड करो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x v1 होगा, फिर उसका एक और डेरिवेटिव तो 2, फिर आगे v3
जीरो, मतलब कि v3 के बाद सारे टर्म जीरो है, v3 भी जीरो है और v3 के बाद के सारे टर्म जीरो, मतलब कि v2 यानी कि 2 फैक्टोरियल वाले टर्म ही मिलेंगे, बाकी के सारे टर्म्स जीरो. So our aim is to choose a v such function which is polynomial and having its derivative goes to zero. u फंक्शन जो है वो cos x फंक्शन हमारा है, उस cos x फंक्शन का nth डेरिवेटिव un, उसका cos x उसका nth डेरिवेटिव, तो cos x फंक्शन का nth डेरिवेटिव वो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने प्रूव किया, अकॉर्डिंग टू अवर स्टैंडर्ड रिजल्ट cos ax प्लस b है, तो उसका आंसर होता है a रेज़ टू n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2. यहाँ पर ओनली cos x है तो उसका nth डेरिवेटिव होगा 1 रेज़ टू n cos x प्लस n पाई बाई 2. 1 रेज़ टू n मतलब कि 1. सो cos x फंक्शन का nth डेरिवेटिव होगा cos x plus n pi by 2. That is our nth derivative of cos function. Cos into x plus n pi by 2. ब्रैकेट के अंदर होगा, n pi by 2 जो है वो x के साथ एडिशन में होगा और वो एंगल के अंदर होगा. Cos of x plus n pi by 2. That is our nth derivative. And now replace all the value of u and v into your formula. If our aim is to find yn, that is x square cos x, its nth derivative, according to formula u and v, so cos x nth derivative into v x square as it is, plus formula check करो तो n minus 1 v1 वो formula में है, n as it is, cos x function का n minus 1 into v1 और v1 हमें मिल गया है 2x. v1 is equal to 2x. नेक्स्ट स्टेप होगा n minus 1 upon 2 factorial into cos x का n minus 2 डेरिवेटिव into v2. v1 2x है तो उसका v2 होगा only 2 और v3 0. तो प्लस करके जो 3 फैक्टोरियल वाला टर्म मिलेगा हमें n minus 1 n minus 2 upon 3 फैक्टोरियल, उसमें प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो बाकी सारे टर्म्स इसके जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं. Now we are simplifying each terms here. X square as it is. Now cos x का nth डेरिवेटिव, तो cos x का nth डेरिवेटिव है cos of x plus n pi by 2. That is our cos of x plus n pi by 2 into x square. नेक्स्ट स्टेप होगा n into cos x का n minus 1th डेरिवेटिव. यूज दिस फॉर्मूला, cos x का n minus 1th डेरिवेटिव. अगर आपके पास un डेरिवेटिव की फॉर्मूला है तो un minus 1 वो होगा cos x plus n minus 1 into pi by 2. तो cos of x plus n minus 1 into pi by 2 multiply with 2x, and next is n minus 1 upon 2 factorial cos function का n minus 2 derivative, that is cos of x plus n minus 2 into pi by 2 into 2, and last में सारे term 0. Now writing in a single line, तो ये x square जो पीछे लिखा उसको आगे लिख सकते हैं हम. तो फर्स्ट टर्म होगा x स्क्वायर इंटू cos x प्लस n पाई बाई 2. फिर यहाँ पर कोएफिशिएंट x और 2x है तो हम लिख सकते हैं n2x या 2x इंटू n या 2nx. कोएफिशिएंट हो गया 2nx cos x प्लस n माइनस 1 पाई अपॉन 2. फिर इसमें डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 है, ये दोनों कट हो जाएंगे. n minus 1 into cos of x plus n minus 2 into pi upon 2, n minus 2 pi upon 2. That is our cos function. So this is our nth derivative of x square cos x. Similarly, third example भी होगा x square into log x. That is our last. So just
वी आर गोइंग इन अ क्विक वे, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, जैसे हमने एक्स स्क्वायर इंटू कॉस का किया वैसे सेम हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो टेक u इक्वल टू लॉग एक्स एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो nth डेरिवेटिव log x का nth डेरिवेटिव जो लास्ट टाइम हमने किया था 8th रिजल्ट log ax प्लस b, उसका nth डेरिवेटिव होता है -1 raised to n minus 1 n minus 1 factorial into a raised to n divide ax plus b raised to n। यहाँ पर ओनली log x है तो उसका nth डेरिवेटिव होगा -1 raised to n minus 1 n minus 1 factorial into 1 raised to n divide x raised to n। तो log x फंक्शन का nth डेरिवेटिव हो गया, फिर v जो है वो x स्क्वायर, तो v1 2x और v2 2, v3 0। We apply in our Leibnitz theorem, so that is log x nth derivative x square plus n into log x n minus 1 into 2x plus n minus 1 upon 2 factorial into log x n minus 2 into 2 plus 0। v3 वाले सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। और log x वाला जो है उसका nth डेरिवेटिव, ये un की फॉर्मूला जो है nth डेरिवेटिव की फॉर्मूला, तो वही हम हर जगह यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में nth डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप में n minus 1th डेरिवेटिव और थर्ड स्टेप में n minus 2 डेरिवेटिव। So nth derivative का फॉर्मूला is it is -1 raised to n minus 1 n minus 1 factorial upon x raised to n into x square। फिर अब हमें करना है n minus 1th डेरिवेटिव, n minus 1। तो ये जो फॉर्मूला ऊपर ली हुई है वो nth डेरिवेटिव की फॉर्मूला है। तो अगर हमें n minus 1 के लिए बनाना है, जो भी आंसर मिलता है उस आंसर में हमें n की जगह पर n minus 1 पुट कर दो। -1 raised to n minus 1 minus 1 n minus 1 minus 1 factorial divide x raised to n minus 1 into v1 that is our 2x next n minus 1 by 2 factorial। अब हमारे पास है log x, उसका n minus 2 डेरिवेटिव -1 raised to n minus 3 factorial upon x raised to n minus 2 into 2 plus j। ये जो n minus 2 है तो उसमें इस n की जगह पर n minus 2 रिप्लेस कर सकते हो, n minus 2। तो सिंप्लीफाई कर दो तो ये x स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई है और नीचे x रेज़ टू n है। बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, बट डिनोमिनेटर में x रेज़ टू n minus 2 बन जाएगा। फिर ये n into 2x है, ये 2 बाहर ले लिया, 2n हो गया और ये x मल्टीप्लाई में जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो डिनोमिनेटर होगा आपका x रेज़ टू n minus 2 एंड लास्ट दैट इज n minus 1। 2 कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल का 2 और ये मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया, तो बचेगा n minus 1 -1 raised to n minus 3 factorial upon x raised to n minus 2। तो सब में कॉमन डिनोमिनेटर में x raised to n minus 2 आ गया, and that is our nth derivative of x square into log x। And now here some example for you. Find nth derivative of y equal to x square e raised to 2x, y equal to x cube log x, y equal to x cube sin x। So find out simplification at home for nth derivatives।
तो आज के लेक्चर में हमने nth डेरिवेटिव का इम्पोर्टेंट थियरम, दैट इज अवर लाइबनिट्ज थियरम, एंड स्टार्टिंग एग्जांपल ऑफ लाइबनिट्ज रूल। और भी एग्जांपल्स आएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। हमने सक्सेसिव डेरिवेटिव में रिजल्ट यूज किया था, उसी का रिजल्ट यहाँ पर फिर से यूज करेंगे, and we find out our nth derivative result using Leibnitz theorem. तो ये 3 एग्जांपल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, so you can solve this example at home. नेक्स्ट ये बड़े वाले जो एग्जांपल्स जो है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो एक आप नोटबुक में भी लिख सकते हो या उसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। So now